ka na. Staro niya yung muna. Okay, can everyone see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Taking start once again. A business, as I told you in the class, is any legal activity that provides goods and services to consumers for the purpose of making profit. The legal word is very important because in each and every country, rules and regulations are different. One activity in one country might be a legal activity, while the same activity if done in other country, that may be called illegal activity, right? Just like, for example, if you have, if you are in USA or UK or in China, so doing business, say, liquor, right, or alcohol, that is not illegal activity. It is legal activity. While in Pakistan, if you are doing it, then it is illegal activity. By goods, we mean items such as cars and televisions, while in services includes things such as haircuts, hotels. In other words, goods are tangible things and which can be touched, and services are intangible or which cannot be touched. As business is done for the profit, and what profit is actually the amount that is left after excluding all the expenses. Or in other words, profit is the amount of revenue or income that a business owner retains after paying all the expenses associated with the operation of the business. आसान भाषा में प्रॉफिट क्या चीज़ है? प्रॉफिट वो चीज़ है जो कि आप लेते होते हैं आफ्टर माइनसिंग ऑल द एक्सपेंसेस. फॉर एग्जांपल, आप शॉपकीपर जो है एक मार्कर ख़रीदता है से 8 रुपये या 10 रुपये पे, और वो बेचता है 15 रुपये का. सो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5. सो ये 5 जो है उनके लिए प्रॉफिट है. Moving forward, okay, one thing I want to say that I will record this lecture and I will upload this recorded lecture on my channel, YouTube channel. I request you people to subscribe that channel so that you could get other videos easily, as I will be sharing other videos related to introduction to business and other fields as well. We have many fields, so you will be getting those videos easily. Coming to other title, that is entrepreneur. Who is an entrepreneur? As I told you, is someone who is willing to risk his or her time and money. Entrepreneur वो शख्स है जो कि willingly, मतलब with consent, रजामंदी के साथ रिस्क लेता है, टाइम का भी और अपने मनी या फंड का भी, in order to start the business. और जाहिर सी बात है एंटरप्रेन्योर के जहन में यही बात होती है कि उन्होंने बिजनेस शुरू करना है प्रॉफिट जनरेशन के लिए. एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स, अच्छा अभी एंटरप्रेन्योर शख्स है. एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जिसमें ये शख्स जो है वो क्रिएट करता है, अपने जहन में लाता है बिजनेस आइडिया को, एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिस्क and by accept the risk and creation, organization and managing a business. So entrepreneurship क्या चीज़ है? आसान भाषा में entrepreneurship वो process है जिसमें entrepreneur create करता है, क्या चीज़ create करता है? business idea को, वो organize भी करता है और manage भी करता है अपने business को. Industry जो है, this is somewhat different. What it is, actually, industry is a group of companies that are related based on their primary business activities. आसान भाषा में industry
it's a group of companies, and companies, the same companies, not different, right? Say we have ghee industry, or we have oil industry. So we have uh, say ghee industry or oil industry. Zoom. नहीं वो बस आज नहीं ले रहा. So we have, say, oil industry. So all the companies that say do the business of production of oil, so collectively they are called industry. There are dozens of industry classifications which are typically grouped into larger categories called sectors. अच्छा भाई, ये इंडस्ट्रीज जब आपस में मिल जाती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, तो वो क्या बन जाता है? एक सेक्टर बन जाता है. इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? मतलब ये हुआ कि कंपनीज जो कि सेम चीज तैयार करती हैं, बहुत सारे ग्रुप में अगर हो जाए तो उसको इंडस्ट्री कहते हैं, और जब इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं तो वो एक सेक्टर बन जाता है. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या है? तीन किस्म के इंडस्ट्रीज हैं. एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, और तीसरी जो है वो टर्शरी टाइप इंडस्ट्री है. प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल्स तैयार होते हैं. ठीक है, रॉ मटेरियल अभी क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल वो चीज़ है जिस तरह भी, फॉर एग्जांपल, कोई पीवीसी पाइप्स किसे अगर कोई इंडस्ट्री है, तो पीवीसी पाइप्स बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए, पाइप्स तो फिनिश प्रोडक्ट है, उससे पहले जो मटेरियल यूज़ होता है पाइप के तैयार होने में, तो वो क्या है? रॉ मटेरियल है. सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है. देखिए, रॉ मटेरियल आपने पाइप्स के बनाने के लिए ख़रीद लिया, अभी जो ये प्रोसेस की जाती है, इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो that industry can be called secondary industry. Tertiary industry is that industry in which we provide the services, not goods. जिस तरह मैंने आपसे बात की, goods वो चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं, सर्विसेज में हम चीज़ों को टच नहीं कर सकते. जिस तरह फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में टीचर जो है वो आपको टीच करते हैं, सो दैट टीचिंग कैन नॉट बी टच्ड. ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं. इसी तरह बैंकिंग जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, होटल्स में आपको सर्विसेज दी जाती हैं. सो दीज आर इन दी टर्शरी कैटेगरी. मूविंग फॉरवर्ड, commerce, what it is, commerce normally refers to the macroeconomic purchase and sale of goods and services by large organizations at scale. commerce क्या चीज़ है? ये रेफर किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक परचेज. मैक्रो इकोनॉमिक का यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में जब आप चीज़ों को या सर्विसेज को आप ख़रीदते हैं या बेचते हैं, सो दैट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड अ कॉमर्स एक्टिविटी. जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना से बहुत बड़ी अमाउंट में हम कोई जैकेट्स ख़रीदें, हम कोई ऑयल ख़रीदें, या से आटा खरीदे बहुत बड़े अमाउंट में, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉमर्स एक्टिविटी. इस कॉमर्स एक्टिविटी में सेल और परचेज ऑफ अ सिंगल आइटम बाय कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन, while commerce refers to all transactions related to the purchase and sale of that item in an economy. देखिए, अगर आप करते हैं परचेज और सेल सिंगल प्रोडक्ट की, कोई कंज्यूमर करता है तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. लेकिन कॉमर्स क्या चीज़ है? अभी यहाँ पे एक और पॉइंट भी कॉमर्स से रिलेटेड आया है कि कॉमर्स किस चीज़ को कहते हैं? टू ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ दैट आइटम इन एन इकोनॉमी. आसान भाषा में अगर मैं कह दूँ, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि चाइना से अगर हम बहुत बड़ी अमाउंट में एक चीज़ ख़रीदें, सो दैट इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स. लेकिन अगर पाकिस्तान में ही सिर्फ और हमसे आटे की अगर मिसाल ले लें, तो जितने भी पाकिस्तान में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आटे के ख़रीदने और बेचने में, तो वो भी
कॉमर्स एक्टिविटी है। एक तो ट्रांजैक्शन है, से मैंने आटा ख़रीद लिया, एक ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो जिस अमाउंट से आटा बेचते हैं और ख़रीदते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड अ कॉमर्स एक्टिविटी। Most commerce is conducted internationally and represents the buying and selling of goods between nations. ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कॉमर्स की जाती है इन बिटवीन नेशंस, मतलब इन बिटवीन कंट्रीज। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि चाइना से अगर हम बहुत बड़ी अमाउंट में चीज़ें ख़रीदें या बेच दें, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉमर्स एक्टिविटी। Other topic that we discussed already is a sole proprietorship. What it is actually, a business owned by a single owner is referred to as a sole proprietorship. जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि सोल प्रोप्राइटर वो शख्स होता है जो कि अकेले जो है वो फंड इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, और होली सोली रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्क और रिटर्न का। मतलब अगर कोई रिस्क आ जाता है, कोई लॉस आ जाती है, तो वो फेस करेगा, अगर प्रॉफिट है तो उन्हीं के अकाउंट में जाएगा। द ओनर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज कॉल्ड एज अ सोल प्रोप्राइटर। एडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? इजी ऑर्गेनाइजेशन, आप आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप रिटेलर बिजनेस की तरफ जाएं तो वो आसानी से आप एक कोई भी शॉप खोल सकते हैं। ऑल अर्निंग्स गो टू सोल प्रोप्राइटर, जिस तरह मैंने आपसे बात की, जितनी अर्निंग्स हैं वो सारी की सारी जाती है सोल प्रोप्राइटर को। इस पे तीसरा क्या है एडवांटेज की? कंप्लीट कंट्रोल होता है। इफ यू कैन टेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू योर बिजनेस, जो भी आपको से अच्छा लगे, तो आप होली सोली आप ऑनर हैं, आप रिस्क ले सकते हैं और उसको फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं। लो टैक्सेस एक ये है कि बाज़ दफ़ा बाज़ कंट्रीज़ में इन पे टैक्सेस भी नहीं होती, तो इसका एडवांटेज एक ये भी है कि अगर है भी तो कम टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? द सोल प्रोप्राइटर इनकर्स ऑल लॉसेस। अगर लॉस हो जाती है तो पूरा का पूरा लॉस जो है वो वही सोल प्रोप्राइटर फेस करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देखिए मैंने आपसे पहली बात की, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि से उन्होंने कर्ज लिया था, सोल प्रोप्राइटर ने बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसको से अभी कर्ज से 1 साल पहले लिया था, अभी आज के दिन उन्होंने पे करना है। लेकिन जो कर्ज उन्होंने लिया था वो अगर वो जितने भी चीज़ें उनकी शॉप में हैं वो भी अगर बेच दे तब भी वो कर्ज पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उससे तो वो कर्ज पूरा नहीं होता वो अमाउंट। वो अपनी पर्सनल गाड़ी भी बेचेगा, वो कुछ ज़मीन हो वो भी बेचेगा, घर हो वो भी बेचेगा, लेकिन ये देखिए दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं है। उन्होंने वो कर्ज पे करने के लिए पर्सनली जो ऑन करता है, गाड़ी हो, ज़मीन हो, घर हो, वो भी बेचना होगा, और वो लाइबिलिटी जो है वो कर्ज पे करना होगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड डिसएडवांटेज क्या है? तीसरा, लिमिटेड फंड्स, उनके पास जो फंड्स होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। Other type of business is partnership. As I told you, a business that is co-owned by 2 or more people is referred to as a partnership. पार्टनरशिप क्या चीज़ है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो जाएं और वो बिजनेस को शुरू करें, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस 2 टाइप्स के होते हैं। इन अ जनरल पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। दैट इज पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म। इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जितने भी पार्टनर्स हैं तो उन्होंने जो भी रिस्क उन्होंने लिया होता है तो उसको या लॉसेस हो जाती है उसको पूरा करना पड़ता है किसी भी ज़रिए से।
दूसरा क्या है टाइप इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप it's called limited partnership. The firm has some limited partners, partners whose liability is limited to the cash or property they contribute to the partnership. Limited partnership में ये होता है कि अगर से 3 बंदों ने पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस शुरू किया है, इसमें से एक बंदे की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी. मीन्स अगर कोई लॉस आ जाता है और वो उस अमाउंट से पूरा नहीं होता, तो इसमें से जो जिस बंदे ने जितना अमाउंट मतलब जिस बंदे की वो लाइबिलिटी लिमिटेड हो, उनसे जस्ट वही अमाउंट जाएगा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था. और वो जो 2 हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. और जिस तरह मैंने बात की कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में अपने पर्सनल चीज़ों को भी सेल आउट करना होगा और वो कर्ज पे करना होगा. That's all for today's lecture. If you have any question, any query, you can ask. And that's all for today. That's all for today. If you have any question and query, you can WhatsApp me your query. And thank you so much. And we'll see you in the next lecture.